Good morning, students. So, we have completed our first unit, chapter 2 of our syllabus, that is units and measurements. So, उस चैप्टर को पूरा करने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, that is unit 2 kinematics. There are two chapters in this unit, chapter 3 motion in a straight line and chapter 4 motion in a plane. So students, chapter 3 motion in a straight line we are going to start. So before starting this chapter, let me tell you what is mechanics. So because these chapters or chapter 3 to chapter 8 we will cover an important field of the physics that is called mechanics. So mechanics is related to the motion. Mechanics is one branch of physics. In class 10th you have done optics. It is related to light, electricity and magnetism. It is related to current and magnetic behavior and all this charge. So in this or in class 9th you have done this chapter mechanics, like motion क्या होती है, equations of motion क्या होते हैं, क्या momentum होता है, energy होती है. So this all we are going to study in detail one by one. So mechanics is the study of motion and its effect along with the cause. So mechanics में motion से related होगा, force से related होगा, उसकी position से related study होगा. और mechanics is also classified into two category. One is kinematics and second is dynamics. सो काइनेमेटिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी का मोशन डिस्कस कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज, मतलब मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं कि इसका कितना वेलोसिटी है, कितने एक्सेलरेशन से ये जा रही है, कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बट उसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है हम उसके बारे में बात नहीं करते. एक्चुअल रीज़न मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी मोशन में कब होगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा. ऑलराइट, तो फोर्स लगेगा तो हम फोर्स की बात काइनेमेटिक्स में नहीं करेंगे, और यही चीज़ यही काइनेमेटिक्स 3 और 4 चैप्टर को कवर करेगी. उसके बाद जो नेक्स्ट मैकेनिक्स वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स. डायनामिक्स में क्या होता है, मोशन इज डिस्कस्ड अलोंग विद द कॉज, मतलब उसमें फोर्स भी आ जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगी और सारे पैरामीटर सब आ जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस मोशन. व्हाट इज मोशन? So students, you have already done this in your class 9, but I should add one important thing कि motion का मतलब क्या होता है. motion का मतलब होता है change in position. When a body changes its position with respect to its immediate surrounding. अब change in position से क्या मतलब है, देखिए important बात ये है कि suppose you are standing on the road एंड यू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए कार. आप रोड पर खड़े हुए हैं और किसी कार का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कार की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, कार की पोजीशन चेंज हो रही है, तो यू से कार इज इन द मोशन. आप अगर कार के अंदर बैठ जाएं, इफ़ यू आर सिटिंग इन द कार, if you observe the motion of car, then car is not in the motion with respect to you. It is very important. Car is not in the motion with respect to you if you are sitting inside the car, but still car is in the motion with respect to the objects, things outside the car. So one body which is a car, moving car, is at motion and it is also at rest. So students, please understand, this is very important aspect of motion. Motion and rest are relative. Motion and rest are relative. What does it mean motion and rest are relative? Motion and rest are relative का मतलब होता है कि if a body is in motion at one time, the body can be also at rest at the same time, but with respect to the other things. एक बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो वही बॉडी किसी तीसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स. तो इट इज़ ए रिलेटिव कंसेप्ट. इसीलिए यहाँ पर in the definition of motion we mention the word immediate surrounding, मतलब body changes its position with respect to its immediate surrounding with the passage of time, then body is said to be in motion, otherwise at rest. Now the next important thing is to study the motion of an object. To understand the motion of an object we need something. हमें क्या क्या चाहिए किसी बॉडी का मोशन डिस्कस करने के लिए, हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए. जैसे इन क्लास 9 और 10 यू हैव डन इन मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं,
हमें मान लो इस पॉइंट का पोजीशन, कोई पॉइंट है वो लोकेट करना है, तो वी यूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट सपोज 2 3 हैं, 2 3 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी। तो हमें अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम उस पॉइंट की पोजीशन पता लगा सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है। ओके, तो इसी तरह से मोशन में भाई, जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसका पोजीशन चेंज होता है, आपको मैंने बता दिया। और ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई मोशन इज द चेंज इन पोजीशन। सो हमें मोशन को डिस्कस करने के लिए वी नीड टू नो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड ड्यूरिंग इट्स मोशन। ऑलराइट, सो वी नीड सम सिस्टम, we need some coordinate system, or position is changing with time, so we also need a clock attached with the system। so एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स हों जो पोजीशन को बता सकें, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, और एक टाइम भी वहाँ पर होना चाहिए, टाइम को मेजरमेंट का भी अरेंजमेंट वहाँ पर होना चाहिए। तो उस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट एंटायर सिस्टम इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So frame of reference is important. What is frame of reference? This is the set of coordinate system in which axes are attached with a clock used to measure the position and describe the motion. The point fixed in the frame of reference with respect to which the position is measured is called origin or reference point। तो इसको और अच्छे से ऐसे समझते हैं कि सपोज आप किसी कार का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ए कार। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, आपने कहा कि कार हैज़ कवर्ड 4 किलोमीटर डिस्टेंस। सो ये जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कहाँ से है, इसके लिए हमने सपोज आपने 4 किलोमीटर डिस्टेंस उसको मेंशन किया फ्रॉम ए बस स्टैंड, फ्रॉम वन पर्टिकुलर पोजीशन बस स्टैंड यू हैव लोकेटेड द ओरिजिन। ओके, सो दिस ओरिजिन, और ये जो बस स्टैंड है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहीं से हम पोजीशन को बताएंगे। थोड़ी देर बाद आफ्टर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड कार का डिस्टेंस ट्रेवल करके चेंज हो गया, वो 6 किलोमीटर पे चली गई, तो फिर 6 हो गया, 8 हो गया। सो वन फिक्स्ड पॉइंट इज नेसेसरी, that is called the origin. Now the important thing is, student please remember this is important thing, it is not necessary body starts its motion from the origin। मतलब जहाँ से हम किसी बॉडी का पोजीशन मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वो इनिशियली बॉडी ओरिजिन पर हो, वहीं पर हो। बॉडी इनिशियली कहीं भी हो सकती है, बॉडी अपना मोशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकती है, बट एक चीज जो होगी वो ये होगी, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन देन टाइम t इज इक्वल टू 0। व्हेन बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन देन टाइम t इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, मैकेनिक्स एंड ऑल दिस। नाउ एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, मोशन इन 1D। तो मोशन जो होती है, जैसे इस चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या होता है, कई बार बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे ये लाइन के लॉन्ग है, तो मैं अगर केवल एक यही लाइन कंसीडर करूं, आइदर आई कंसीडर दिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पर अगर कोई बॉडी चल रही है तो वन कोऑर्डिनेट एक्सिस सफिशिएंट, मान लो यहाँ पर था, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा 4, फिर कुछ हो गया 8। तो अगर ये एक ही लाइन पर चलता रहेगा तो मेरे को केवल एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर ये बीच में प्लेन में चलना स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे को वाई की भी जरूरत पड़ेगी। सो इफ ए बॉडी इज मूविंग along a line such that only one coordinate is required to describe the motion, that this is called motion in one dimension. So students please remember, this is very important, body moves along a straight line and one coordinate is required, body will not divert from its, ये ध्यान रखना है, if a body is moving along this line that it will not divert its direction of motion, इसको डेविएट नहीं होगी, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। ऐसा तो हो सकता है कि ये सीधी जाए और इसी पाथ पर वापस चली आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये अपने पाथ से डेविएट हो जाए अगर मोशन इन 1 डायमेंशन है। इफ मोशन इन 1D, तो मोशन इन 1D में
body moves along a straight line, it does not leave its straight line path, it can only reverses the direction of motion. So this is what we are going to discuss in this chapter, motion in one dimension. So students, tomorrow in the next class we will continue from some parameters which are required to describe the motion of an object. Now you understand, try to understand what I have explained you. Okay, thank you and thank you so much.